ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਪੜਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। the number of electric field lines passes through a surface। ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ। the number of electric field lines passing through a surface। इधर ध्यान दिओ, अब देखो जो लिखा समझ आउंदा, पहलो इधर ध्यान दो समझो। आ एक सरफेस बना दी आपां, इत्थे एक सरफेस बनाया आपां, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਆ, ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ ਇਦਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਬਣੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ? ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਫਲਕਸ। ਫਲਕਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਫਾਈ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈ ਈ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? ਸਿਰਫ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਫੇਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਲਾਈਨਸ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ? 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ? 4। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਇੱਥੇ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 4। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਬਸ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ 2 ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ 4 5 6 ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਆਪਾਂ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਫੇਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵਰਡ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਸਰਫੇਸ, ਆ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਏਰੀਆ ਛੋਟਾ ਫਲਕਸ ਛੋਟੀ, ਜੇ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਫਲਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਫਲਕਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਏਰੀਆ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਫਲਕਸ ਘੱਟ, ਜੇ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਫਲਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਲਿਖਣੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ EA। ਕਲੀਅਰ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰੀਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? EA cos ਥੀਟਾ, EA cos ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਏਰੀਆ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ 'ਚ ਫਰਕ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਆ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਪੇਸ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ, x ਐਕਸਿਸ, y ਐਕਸਿਸ ਤੇ z ਐਕਸਿਸ।
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਕਟੈਂਗਲ ਵਗੈਰਾ। ਆ ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ, ਆ ਬ੍ਰੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ मैं की लिखूँगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रैथ, ए बी लिखता। पर जेकर मैं लिखना हो एरिया वैक्टर, एरिए नूं आपां ए ही लिखना, एरिया वैक्टर फिर ए बी दे नाल की आउणा वा देखियो। एरिया वैक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर हुंदा। जिद्दां आ सरफेस आ इहदे परपेंडिकुलर तुहाडे वाल नूं, ते तुहाडे वाल नूं किहड़ा एक्सिस आ Z। जैड जरूर बोर्ड से इदा बनाया, पर जैड है किधर आ तुहाडे वाल। इस तरह हुंदा आ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ते आ जैड एक्सिस, ते एरिया वैक्टर हमेशा आ सरफेस ते की हुंदा वा परपेंडिकुलर। फिर आपां इत्थे डायरैक्शन किदां दसनी हुंदी के कैप नाल, क्योंकि एक्स की डायरैक्शन कौन दसदा आई कैप, वाई की डायरैक्शन कौन दसदा जे कैप, ते जैड की डायरैक्शन कौन दसदा के कैप। दसो इन्नियां गल्लां पता लगदियां। हुण जरूरी थोड़ा इधर देखियो, जिद्दां आ बोर्ड ही आ, जे मैं कहां इहदा एरिया तुसीं की करोगे लेंथ इंटू ब्रैथ, एरिया दसदा। जे मैं कहां एरिया वैक्टर, तुसीं इस सरफेस ते इधरले बन्ने डायरैक्शन वेखनी। इन्ना क्लीयर हो जाता। हुण इधर भी देख सकते ते बोर्ड के पिछले बन्ने भी देख सकते, परले बन्ने नूं भी। जिद्दां जैड इधर भी आ सकता, जैड पिछले बन्ने भी जा सकता। फिर इत्थे के भी हो सकता, इत्थे माइनस के भी ला सकते, इक्को चीज़ ही है। ठीक है ना। हुण अगे देखियो, कोई होर आपां इत्थे सरफेस बनाईए। इस तरह कोई मैं शेप बना दिना, आ हैगा जे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ते जैड एक्सिस। हुण इहदा एरिया वैक्टर किद्दां लिखोगे, आ लेंथ आ ब्रैथ, लेंथ इंटू ब्रैथ लिखता। अगे की लिखना आपां, एरिया वैक्टर की हुंदा वा परपेंडिकुलर ना। देखो ये सरफेस है कित्थे कित्थे आ, ये एक्स एक्सिस हैगा, ये जैड एक्सिस हैगा, ते फिर किहदे परपेंडिकुलर होना वाई दे। जिहड़ा बच गया तो वाई नूं कौन रिप्रजेंट करता हुंदा जे कैप। इत्थे जे पॉजिटिव भी आ सकदा, इत्थे जे नैगेटिव भी आ सकदा। मैं इत्थे मेन कहना की चाहुंदा वा एरिया वैक्टर, एरिया वैक्टर की हुंदा वा परपेंडिकुलर। किद्दां इनू रिप्रजेंट करना हुंदा वा, परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। इत्थे प्लेन सरफेस इस तरह का, इहदा एरिया वैक्टर किधर होऊगा, जां ते इहदा एरिया वैक्टर तुहाडे वल होऊगा जां बोर्ड के पिछले पासे होऊगा। लग गया ना पता। ठीक है, एक लास्ट डायग्राम देखियो। आ वाई एक्सिस, जैड एक्सिस, एक्स एक्सिस। इत्थे मैं एक सर्कल बना दिना जिहदा रेडियस आर आ। एरिया वैक्टर किद्दां लिखोगे, एरिया वैक्टर किद्दां लिखीदा, पहिलों इहदा एरिया, एरिया की हुंदा पाई आर दा स्केयर। फिर आपां इत्थे आई जे के जां कुछ लाउणा हुंदा वा, इह किस विच आ, वाई विच ते जैड विच। बचिया एक्स एक्सिस तुसीं प्लस आई कैप भी ला सकदे, माइनस आई कैप भी ला सकदे। हुण लग जाता पता। ठीक है, कोई भी चीज़ होवे ना, जिद्दां मैं इत्थे एक सिलेंडर बनादा, इहदा एरिया वैक्टर किद्दां लिखांगे, पहिलों इहदा एरिया लिखना हुंदा कोई ना कोई 2πRh। बचिया किहड़ा आ वाई, आ एक्स जैड, तुसीं प्लस माइनस जिहड़ा मर्जी के कैप ला सकदे। आ गल मेन दसनी है तुहानूं भी परपेंडिकुलर हुंदा जे प्लेन सरफेस ते। आ प्लेन सरफेस आ पूरा, दो एक्सिस वाले नूं प्लेन सरफेस कहिंदे ने, ते इहदे परपेंडिकुलर जैड ही बचिया। दो एक्सिस वाले नूं प्लेन सरफेस कहिंदे ने, इहदे परपेंडिकुलर जैड ही बचिया। दो एक्सिस वाले नूं प्लेन सरफेस कहिंदे ने, इहदे परपेंडिकुलर वाई ही बचिया। ठीक, इन्ना नोट करियो, फिर वेखदे इहदा फायदा कित्थे होना। हुण एरिया वैक्टर का भुलेखा ना पवे। एरिया तो एरिया वैक्टर च फर्क तुहानूं पता होना चाहिए। आ चीज़ दसी ही मैं तुहानूं हुणे। कोई भी शेप है ना, मान लो इस तरह की शेप आ उहदा हो गया एरिया, आ उहदा एरिया हो गया, तो इहदे परपेंडिकुलर की हुंदा जे एरिया वैक्टर। ठीक,
मैं तुहानूं इहो चीज़ हुणे दसी आ भी कोई भी शेप होवे ना जिद्दां दी मर्जी, आ सारा हो गया उहदा एरिया, ਇਹਦੇ परपेंडिकुलर भावें इधरले बन्ने बना लो, ये तां नूं बनाउण दा मतलब भी साडे वाले आ लाइन, जिद्दां आ सरफेस ते साडे वाली बननी ना लाइन, ये उहदा बन गया एरिया वैक्टर। ठीक है, देखियो इनू किद्दां आपां वरतांगे। पहलों तो फ्लक्स का फार्मूला जिहड़ा एक्सप्रैशन इनू होर थोड़ा सही करिए ये चीज़ां वरत के। आ देखियो आपां हुणे इलैक्ट्रिक फ्लक्स का किद्दां दा एक्सप्रैशन बनाया, आपां क्या कोई भी सरफेस आ उहदे विचों इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस इदां पास करदियां पईयां, इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस, ते आ चीज़ नूं मैं कहूँगा एरिया, एरिया ना कि एरिया वैक्टर। ते फ्लक्स की हुंदा वा, फ्लक्स हुंदा ई ए डॉट प्रोडक्ट हुंदा जां ई ए कॉस थीटा, ते आ थीटा किन्ने डिग्री हुंदा 90 डिग्री, क्योंकि आ वेखो परपेंडिकुलर ही बनता पिया 90 डिग्री, की आ जाना फाई ई ए कॉस 90 किन्ना हुंदा, नहीं इत्थे 90 ना लिखिए, कॉस 90 0 हुंदा, इहो फार्मूला याद रखो। अगे देखियो मान लो आ सरफेस हुंदा, सरफेस हुंदा इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन इदां हो जाती, आ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन इत्थे 90 किद्दां आउणा देखियो, ई ते ए दे विचकार, ए दा मतलब इत्थे हैगा जी एरिया वैक्टर, एरिया वैक्टर, एरिया वैक्टर, ते एरिया वैक्टर किद्दां बनाईंदा, एरिए दे परपेंडिकुलर आ एरिया वैक्टर आ। इलैक्ट्रिक फील्ड ते एरिए दे विच 90 डिग्री का एंगल हुंदा, पर इलैक्ट्रिक फील्ड ते एरिया वैक्टर एक दूजे दे की हुंदे पैरलल, थीटा किन्ने हुंदा वा 0 डिग्री, इत्थे किन्ना भरना ही 0 डिग्री, तां करके इत्थे ई आउणा ही। हुण पता लगा? ठीक है, आ वेखियो आ पूरा हो गया एरिया, आ हो गई इलैक्ट्रिक फील्ड, एरिए तो एरिया वैक्टर किद्दां बनाईंदा, परपेंडिकुलर हुंदा इहदे, ते इन्हां विच एंगल किन्ना आ गया हुण थीटा। इस ई दे दो कंपोनेंट करिए, ई दा एक कंपोनेंट होना वा थीटे वाल जिन्नू की कहीदा ई कॉस थीटा, ते एक होना परपेंडिकुलर जिन्नू की कहीदा ई साइन थीटा। ते आपां केड़ी केड़ी चीज़ सिलैक्ट करी दी, ए सिलैक्ट करीदा ते ई ओ वाला सिलैक्ट करीदा जदों दोनों दे विच एंगल किन्ना होवे 0 डिग्री। हुण आपां ए सिलैक्ट कीता ते 3 ई ही, तिन्नां विचों किहड़ा सिलैक्ट करना जिहड़ा ए दे पैरलल आ। देखो इन्हां च कोई एंगल नहीं 0 डिग्री आ। फिर आपां फ्लक्स किद्दां लिखांगे, फ्लक्स लिखांगे ए लिखिया, ई लिखिया ते नाल की लिखता कॉस थीटा, ई किहड़ा लिखिया ई कॉस थीटे वाला, सेम इहो फार्मूला बनिया। हुंदा क्लीयर? ठीक है, इत्थे देखियो जिद्दां कोई होर इस तरह का सरफेस हुंदा, इस तरह का सरफेस हुंदा ते इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस जिहड़ियां वा वो आपां बना दईए इस तरह पास कर दियां पईयां, आ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस। सब तो पहलों देखो फ्लक्स लिखण दे लई की चाहिदा सानू, ई चाहिदा ते ए चाहिदा, दोनों एक दिशा च। एदा एरिया वैक्टर बनाइए, एदा एरिया वैक्टर साडे वाल नूं, आ सरफेस है ना प्लेन सरफेस साडे वाल नूं, ते वो एरो किधर नूं बनाईदा तां नूं, तां वाला एरो सानू ही रिप्रजेंट करदा पिया ना, ये हैगा जे एरिया वैक्टर। आ पूरा एरिया ही, पूरा एरिया ही, ते आ उपर नूं जिहड़ा परपेंडिकुलर बनाता एरिया वैक्टर, दोनों च एंगल किन्ना वा थीटा। ਇਹਦੇ दो कंपोनेंट करिए आपां, एक थीटे वाल जिन्हों ई कॉस थीटा कहीदा, एक परपेंडिकुलर जिन्हों ई साइन थीटा कहीदा। फिर आपां किहड़ा सिलैक्ट करना जिहड़ा ए दी डायरैक्शन विच आ, ओनू सिलैक्ट करना। फ्लक्स की आ गया ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, कोई मुश्किल तो नहीं ना? ठीक है, फ्लक्स जिहड़ा वा ये दो वैक्टर दी प्रोडक्ट स्केलर बना दिंदी, आ भी वैक्टर दो वैक्टर दी प्रोडक्ट किनू जन्म दिंदी, स्केलर नू। फिर फ्लक्स किहड़ी क्वांटिटी आ, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये भी याद रवे।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਕੂਲੰਬ, ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲੰਬ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਚਾਰਜ, ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲੰਬ। ਤੇ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲੰਬ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੋਰ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ V/D। V/D ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੋਲਟ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭਰਾਂਗੇ E ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਭਰ ਸਕਦੇ? ਵੋਲਟ ਪਰ ਮੀਟਰ, ਤੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ? ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ। ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾ ਦਿੰਨਾ। देखियो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखियो कि है फाइंड इलैक्ट्रिक फ्लक्स। इलैक्ट्रिक फ्लक्स आपां लभना जे सानू फिगर गिवन आ सर्कल जिहदा रेडियस हैगा R, एरिया वैक्टर A वैक्टर, इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस पास कर दियां पईयां ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੇ 30 ਡਿਗਰੀ। 30 ਡਿਗਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਕਸ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆ ਸੇਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਬਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ? EA cos ਥੀਟਾ। cos ਥੀਟਾ ਲਿਖਤਾ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆ ਚੀਜ਼ 30 ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਭਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਵਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ E ਤੇ A ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ। ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਥੀਟਾ ਇਹ E ਤੇ A ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ E ਐਂਡ A, E ਤੇ A ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਭਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ 30 ਤੇ ਆ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 60 ਡਿਗਰੀ। ਟੋਟਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਆ 30 ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਭਰਨਾ ਸੀ? 60 ਡਿਗਰੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ? EA cos 60 ਡਿਗਰੀ। cos 60 ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3/2 1/2। cos 30 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹਾਂ 1/2। ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 1/2 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਏਰੀਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਸਰਫੇਸ ਸਰਕਲ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? πr ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ R ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੇਣੀ ਸੀ 1/2। ਇਹ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੀ E πr²/2 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ। यूनिट जरूर पा दिया करियो। यह है गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। नैक्सट देखो गॉस लॉ। गॉस लॉ बड़ा जरूरी है, एग्जाम दे विच आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखो इहदा एक्सप्रैशन की आ, ओनू लर्न करिए तो वो स्टेटमेंट विच आपां लिख दिंदे आ फ्लक्स। फ्लक्स एक इहदे इक्वल हुंदी आ
क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। आ इहदा मैथेमैटिकल फार्मूला हुंदा जे गॉस लॉ दा। ते एक केदे ते फ्लक्स कड्डी आ, किहो जिहा सरफेस हुंदा, क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस ये कोई सर्कल नहीं होना, ये 3D फिगर होनी कोई। 3D फिगर का मतलब कोई जिदा गेंद हो गया, सफीयर हो गया, ਇਹੋ जी कोई चीज़ आ जिहड़ी इधर नूं भी कवर होगी। ये प्लेन सरफेस नहीं हैगा, 2D नहीं होगा, 3D सरफेस जे 3D क्लोज्ड सरफेस। गॉस लॉ इन्हां ते एप्लीकेबल आ 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेसिस ते। जिद्दां सिलेंडर हो गया कोई, ये भी 3D सरफेस आ, क्योंकि आ जिहड़ा आ सिलेंड्रिकल शेप आ, ये 3D सरफेस आ। इहदी कोई ना कोई लेंथ हैगी, कोई ना कोई रेडियस भी हैगा ते थिकनेस भी हैगी कोई ना कोई। ठीक है, 3 डायमेंशनल सरफेस ते एप्लीकेबल हुंदा। पहली गल ते दिमाग च बिठाओ, गॉस लॉ किन्ना ते एप्लीकेबल होगा, 3D क्लोज्ड सरफेस ते। ते आ चीज़ की लिखी आ आपां, आ जिहड़ा चार्ज आ इहदे अंदर बार कोई ना कोई चार्ज होगा, कोई ना कोई चार्ज होगा। तो जे प्लस चार्ज है तो बार बार की निकलदियाँ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस, पॉजिटिव चार्ज तो बार बार ही जानियाँ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस। तो इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस इहदे नाल लिंक हुंदियां पईयां वा। इहनूं पूरा समझ लिओ वधिया। जिस तरह आ बॉल होवे ते अंदर बार कोई ना कोई चार्ज पिया होवे, लाइन इहते सरफेस नाल इदा लिंक होणगियां ना, इत्थों लाइनस जिहड़ियां निकलणगियां इहदे नाल इदां टच करनियां ही है ना। तो जदों लाइनस लिंक हुंदियां वा ते उदों की पैदा हुंदी आ, फ्लक्स। उदों की पैदा हुंदी आ, फ्लक्स। आपां की कवांगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल फ्लक्स of a closed 3D surface is equal to 1 by epsilon naught times charge, 1 by epsilon naught times charge enclosed in the surface, charge enclosed in the surface। आ फिर वेखियो, देखो ये चार्ज ने, चार्ज की वजह नाल की पैदा हुई, फ्लक्स। क्योंकि चार्ज दे विचों कौन बाहर निकलिया, इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस। आपां हुण एक ही फार्मूला पढ़िया ही, फ्लक्स किहदे ते डिपेंड करदी आ, एरिए ते इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस ते। इहो पढ़िया हुणे आपां ई कॉस थीटा जो भी हैगा ही। हुण ये ई किहदे तो आया, फ्लक्स तो, इहदे तो, चार्ज तो। आ जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस आ, ये किहदे तो आईयां, चार्ज तो। ते ये पूरी 100% नहीं बनती, कोई ना कोई इत्थे एयर दे पार्टिकल हुंदे ने जिहड़े उस फ्लक्स नूं घटा दिंदे। जिन्ना चार्ज आ ओनी फ्लक्स नहीं बनती, जिन्ना चार्ज आ ओनी फ्लक्स नहीं बनती, कुछ ना कुछ फ्लक्स घटूगी। घटाउंदा कौन आ, मीडियम। ते मीडियम नूं कौन रिप्रजेंट करदा, एप्सिलॉन नॉट। इन्नी चीज़ समझ लगदी, जिन्ना चार्ज आ ओनी फ्लक्स नहीं बननी, कुछ ना कुछ फ्लक्स घटूगी। तो उन्होंने घटाउणा किन्ने हेठां, जो भी डिवाइड विच कोई चीज़ होवे घटाउंदी है ना चीज़। ठीक है, बस आपां इहो ही कहना वा। इनू इंग्लिश च लिखिया वा, टोटल फ्लक्स इज 1 by epsilon naught चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। इन्ना क्लीयर हुंदा। इहदा प्रूफ देखियो, ये किद्दां आऊगा रिजल्ट। प्रूफ भी इहदा आ सकदा वा। आपां नूं आ चीज़ पता ना, आपां नूं पता फाई जिहड़ा वा, फाई आ ये किहदे इक्वल हुंदा, EDA। आपां छोटा जिहा सरफेस सिलैक्ट कर लिया, DA आपां क्या, D फाई किहदे इक्वल हुंदा, EDA। D फाई उसे तरह, E उसे तरह। इंटीग्रेशन कीता, D फाई दा की बन गया, फाई। DA की होगा 4 पाई R दा स्केयर।
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਸਫੀਅਰ। ਸਫੀਅਰ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਆਰ। ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਆਰ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡੀਏ ਜੇਕਰ ਜੁੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? 4πr²। ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਫੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 4πr ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਫਾਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 1/4πε0 ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇੱਥੇ ਭਰੀਏ 1/4πε0 ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ? 4πr ਦਾ ਸਕੁਅਰ। 4π ਨਾ 4π ਕੈਂਸਲ, ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਨਾ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਕੈਂਸਲ, ਫਾਈ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ? Q/ε0। ਆ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੌਸ ਲਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੌਸ ਲਾ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ। दिस इज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। हो गया क्लियर? ठीक, ठीक है। दो चार चीज़ां मैं इत्थे नाल ही दस दिना, बाकी नैक्सट डे कर लांगे। पहली गल, आ जिहड़ा सरफेस होया करूगा ना, जिथे आ सारा कुछ आपां कीता वा, इनू आपां क्या करांगे? गॉसियन सरफेस। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ? ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਮ, ਆਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਕੋਈ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਰ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ। ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਆਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਸਦਾ ਸੇਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਥੀਟਾ। ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਈ ਤੇ ਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਡਿਗਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ। cos 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 1। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ cos ਥੀਟਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ cos ਥੀਟਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ cos 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 1। ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ? ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ। ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣ, ਆਰ ਤੇ ਥੀਟਾ। ਆਰ ਸਦਾ ਸੇਮ, ਥੀਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਨਾ? ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੱਲ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਡੇ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ।